Good morning, Drishti. Good morning, Rinku. We probably have a little smaller session today. Okay, so good morning, Astha. What did I ask you to read? कहाँ तक बोला था मैंने पढ़ने के लिए आपको? यहाँ तक? ठीक है. तो मार्क्सिज्म इज ऑफन टर्म्ड मटीरियलिस्ट क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्योंकि हम मटीरियल की बात कर रहे हैं. मटीरियल कंडीशंस जो हैं, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, बिकॉज इट सीक्स टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन एक्चुअल मटेरियल कंडीशंस जो इकोनॉमी, सैलरी, फैक्ट्री कंडीशंस हैं, प्रॉफिट है, फॉर्म्स ऑफ लिविंग है, पॉपुलेशन है, एंड कल्चरल forms and abstract representations in cultural forms. So the Marxist approach does not accept the theories of artist as genius or artist as solitary thinker. Such a notion of the artist disconnects him or her from the milieu in which he or she undergoes certain experiences and therefore creates particular kinds of artifacts. तो मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है वो किसी भी थ्योरी को ऐसे नहीं एक्सेप्ट करती, ऐसे या ऐसे, क्योंकि ऐसा एक जो थिंकिंग है वो क्या करता है, किसी एक आर्टिस्ट के बारे में अगर आप इस तरह से सीखते हो, इस तरह से समझते हो कि वो एक जीनियस है या एक सॉलिटरी थिंकर है, तो वो आर्टिस्ट को डिस्कनेक्ट कर रहा है फ्रॉम यू नो दिस एंटायर मिलियू जिसमें उसको एक्सपीरियंस लेना है, and therefore it creates particular kinds of artifacts. In other words, Marxism asks us to focus on social positions of a writer. कि राइटर जो है वो अकेला नहीं है, सॉलिटरी थिंकर नहीं है, वो एक सोशल पोजीशन में है. जैसे न्यू क्रिटिसिज्म आप सबको याद होगा, न्यू क्रिटिक्स में तो ऑथर को हटा ही दिया है ना, कि कोई काम ही नहीं है इनका, हमें चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए जो टेबल के ऊपर है. मार्क्सिस्ट कहते हैं कि वी हैव टू लोकेट राइटर्स सोशल पोजीशन, वो कौन से एरिया में, कैसे कल्चर में, कैसे बैकग्राउंड में बैठ के लिख रहा है या लिख रही है. Thus, in order to understand why particular forms and themes appeared in the first kind of English poetry we study, the early modern poetry of Chaucer, Spenser, Cavaliers, we need to locate these authors in their context. कि जब ये लोग लिख रहे थे तब कैसा माहौल था. Printing आया, printing made books cheaper in the 15th century. On the other hand, patronage continued to be a key system of poetic survival. We all know this. कि poets का survival उनके जो patrons थे उनकी वजह से possible था उस time पे. Because the poets did not usually have another means of livelihood. वो patrons ही उनका financial सब कुछ देखते थे. This means poets like Chaucer और Spencer wrote particular kinds of work. क्यों? क्योंकि उनका जो पैटर्नेज सिस्टम था, ऑल्दो इंडिपेंडेंटली लिख रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना. बुक्स फॉर द मासेस वर बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू प्रिंटिंग.
To extend this argument to William Shakespeare, we need to see the themes and forms of Shakespeare's plays not simply as aesthetically polished, but as determined by what the market was like for such works. तभी तो रेस्टोरेशन एज में रेस्टोरेशन कॉमेडीज आई, क्योंकि दैट वाज रिक्वायर्ड ऑफ द एज. तो डोंट जस्ट थिंक कि एक राइटर इंडिपेंडेंटली लिख रहा है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत सारे अच्छे राइटर्स होते हैं, लेकिन एक राइटर अगर अपने टाइम के हिसाब से ना लिखे ना, तो वो उतना फेमस हो नहीं पाता. विलियम शेक्सपियर शेक्सपियर इसीलिए बने बिकॉज ही न्यू व्हाट द मार्केट वाज लाइक. So this implies that the plays took those forms and themes that people would pay to watch, right? So Shakespeare had to entertain the masses, not the aristocrats alone. Thus, he had to ensure that his plays were popular, that they contained things that people would pay and view. In effect, therefore, Shakespeare wrote for the general public, and the market demand for particular kinds of works determined what he wrote. Yet, he could not afford to annoy the royalty by making his plays so populist or works of simple mass appeal. अब सिर्फ पॉपुलर ऑडियंस को तो नहीं सिर्फ अपील करना है ना, जो लोग पैसे वाले हैं, उनको भी तो करना है. In short, what we like to think of as Shakespeare's genius was the genius of a marketer, a businessman. He was a true businessman. He was able to sell his product to both the royalty and the masses. आज भी चल रहा है. इतना यूनिवर्सल थीम्स हैं कि शेक्सपियर के वर्क्स आज भी अडैप्ट हो रहे हैं. To use a more contemporary example, films and even computer games coming out from the USA have regularly portrayed other cultures as evil. And the हमेशा देखो, अमेरिकन फिल्म्स देखी होंगी आपने. पूरी दुनिया जो है वो वर्ज पे है खत्म होने के, फिर एक अमेरिकन हीरो आएगा, सेवियर महाराजा, वो बचाएंगे सबको. बाकी सब इविल हैं, अमेरिकन सेवियर्स हैं. The hugely successful popular films like Air Force One, Independence Day, या Armageddon or Die Hard. Die Hard देखी होगी शायद आपने. It showed Americans saving the world, almost as though no other race or nation wanted this responsibility. So, in the post Cold War era, when only one superpower remained, American films depicted Americans as the all powerful people, and America, a country every nation turned to in moments of crisis. जो दो फिल्म्स में दिखाया वैसी आइडियोलॉजी भी तो फैलती है. Thus, in very simplistic terms, constitutes the sociology of cultural production. This is the sociology of cultural production. Yet, we need to also understand that cultural products, such as a film or a novel, cannot be reduced to social contexts alone. अब क्या हमें सिर्फ social context ही देखना है? नहीं. Thus, Bollywood that routinely produces war films, Hollywood, sorry, full of the American vision about terrorists and attacks, also produces different versions of terrorism and America in films like the lesser known Syriana. अलग तरह की फिल्म्स भी आ रही हैं, but they are lesser known. तो एक मार्क्सिस्ट अप्रोच asks us to pay attention to the profits, financial profit भी और cultural profit भी, जो आर्टिस्ट्स और राइटर्स बना रहे हैं, that determine the kind of work they produced. When writing became a profession in the 18th century England, writing itself changed. Writers were like all other artisans producing works that would sell. अभी आपको सिर्फ राइटर होना नहीं है. राइटर तो अगर आप हो ही, आपको बेचना भी आना चाहिए उसको. यू टू बी ऑल इन वन. 18th सेंचुरी में जो था वो एज ऑफ प्रोफेशनलिज्म था आर्टिस्ट्स के लिए. To take a more recent example, that of Harry Potter. We need to locate, राउलिंग ने लिखा है हैरी पॉटर, तो राउलिंग को हमें कंटेम्प्रेरी कल्चर्स के अंदर लोकेट करना पड़ेगा. ब्रांडिंग, ब्रांड मैनेजिंग, डिफ्यूज ऑडियंस, दैट इज राउलिंग्स ऑडियंस आर स्कैटर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. मतलब कौन नहीं देखता हैरी पॉटर? सब देखते हैं.
and an excellent publicity machine, which is Warner Bros. Starting में लिख के आता है ना, have helped create brand Potter. The genius of Rowling, such as it is, must be seen at least partly as the effect of some of the most brilliant marketing and media strategies in recent times. So, we are speaking here of a multi billion dollar industry that has grown up around Harry Potter. आज भी देख रहे हैं हम लोग हैरी पॉटर. हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी शायद हैरी पॉटर देखेगी, क्योंकि ऐसी कोई फिल्म बनी ही नहीं कभी. It helped by strategically placed stories about her single motherhood and poverty days. अब राउलिंग का भी तो एक वो आया ना नैरेटिव, the careful referencing to an earlier fantasy, Tolkien's, to mark a continuity of tradition, the lawsuits that ensure that she remains in control of all Potter texts, among others. While this helps us understand how a work of art is formed, it does not explain how we, जो हम रीडर्स हैं, व्यूअर्स हैं, हम लोग कैसे मीनिंग क्रिएट करते हैं उस टेक्स्ट से. मार्क्सिस्ट अप्रोच लोकेट्स नॉट ओनली, देखो मार्क्सिज्म जो है ना, इट इज क्वाइट थियोरेटिकल. देर आर पॉसिबिलिटीज कि मार्क्सिज्म से आपको सेंटेंस्ड बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि पढ़ते जाओगे आप नेम्स आएंगे, लेकिन in comparison to feminism कम names आएंगे, which is a good thing, but you have to keep reading. So a Marxist approach locates not only the text and author within a social context but also the reader. अभी हमने क्या क्या किया, अभी हमने राइटर को सोशल कॉन्टेक्स्ट में रखा है ना, फिर टेक्स्ट को सोशल कॉन्टेक्स्ट में रखा, इसके बाद हमने रीडर को भी उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट में रखना है. अभी आप हैरी पॉटर देख रहे हो, एक अमेरिकन बैठ के अपने आलीशान बंगले में हैरी पॉटर देख रहा है. दूसरी तरफ एक इंडियन अपने आलीशान बंगले में बैठ के देख रहा है. तीसरी तरफ हो सकता है कोई बहुत पुअर अमेरिकन है जो देख रहा है, कोई इंडियन मिडिल क्लास हो सकता है. अलग अलग सोशल कॉन्टेक्स्ट है सबका, और अपने अपने सोशल पोजीशंस के हिसाब से हम लोग मीनिंग जनरेट करते हैं. तो रीडर्स मेक पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ मीनिंग्स फ्रॉम टेक्स्ट बिकॉज ऑफ देयर सोशल पोजीशन, कि कौन सी क्लास, कास्ट, रेस, जेंडर से वो बिलोंग करते हैं. Literacy changed with the cheaper books available as a result of printing in early modern England. So, as a result, the nature of readership also changed. Now, more middle class people could afford to read. This meant that the books had to cater to a new kind of readership. अभी जब मिडिल क्लास राइज होने लगा, मिडिल क्लास रीडरशिप राइज हुई, उसके बाद विमेन रीडरशिप राइज हुई, तो अलग अलग ऑडियंस आ रहा था ना, उन सब के टेस्ट्स के हिसाब से बुक्स भी आनी चाहिए थी. As a result, writers like Thomas Delany were hugely successful when they catered to the middle classes rather than the aristocracy. Delany's works, full of body humor, sorry, problems of the working classes and simple prose appealed to the new literates. तो डेलोनी के वर्क्स ऐसे थे कि वो मिडिल क्लास को अपील कर रहे थे. अभी हिंदी फिल्म्स की बात करें, 1990s की मजेदार फिल्म्स थी, है ना, जैसे धूम, धूम मचा लो, धूम मचा ले, धूम मचा लो, मजा आता था देखने में. अभी फिल्म्स नहीं आती, अभी तो मिस्ट्री, मर्डर यही चलता रहता है फिल्म्स में. इट शोज फैमिलीज दैट कंसिस्ट्स इंटायरली ऑफ टू पार्टनर्स. अभी यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली को प्रमोट किया धूम में, दो ही लोग हैं सिर्फ, कोई पेरेंट्स नहीं, कोई बच्चे नहीं, है ना. These appeal to a metropolitan audience where such families are increasingly common now. Individuals find the individualism of such films and their blatant consumerism resonating with their own lives. देख के लगता है कि चलो ठीक है, हम भी कुछ गलत नहीं कर रहे, शायद ऐसा हो रहा है. There are no references to caste, कोई है ही नहीं कौन कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, even though caste is a key element in the life of individuals in most part of India even today. Such films that decontextualize, जो मतलब erase कर देती हैं,
आइडेंटिटी मार्कर्स को, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन-सा क्लास है, कौन-सा कास्ट है। एवरीबॉडी लिव्स इन अ फैंसी अपार्टमेंट। अब आपने देखा ही होगा धूम मचाले, धूम में उनका अपार्टमेंट ऋतिक रोशन वाला, एंड possesses a certain amount of wealth, vocabulary and social circle. Appeal to a generation of viewers from metropolitan backgrounds. इस तरह का आप दिखाओ कुछ तो मज़ा आएगा लोगों को। This means an urbanite of a particular class. अभी ये कोई लोअर क्लास सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं है। ये है वो हमारी ग्रोइंग अपर मिडिल क्लास बोल सकते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, वोकैब्युलरी है, सोशल सर्कल भी है। Urbanite social particular class responds better to a lifestyle depicted in metro or dhoom than to say rural India, right? The appeal of Chinua Achebe's Things Fall Apart to readers from Asia, South America and Africa. तो तीनों कॉन्टिनेंट्स, एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ये तीनों कॉन्टिनेंट्स में चिनो एचबे का जो ये वर्क है, it had to do with the fact that here was a novelist describing the racialized aspects of colonialism as no white author had done. Achbe's fiction generated a readership because these readers could relate from their own experience and a memory of colonialism to what happens to Okonkwo and the African protagonists. Thus, a Marxist approach to culture also asks us to pay attention to the social contexts of cultural consumption, that is, the contexts of readers, film goers, theater fans, and TV viewers. तो Marxist approach तीनों को देख रहा है, राइटर्स, रीडर्स को भी, कि सोशल कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दो जरा, कि कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है एक वर्क। सो क्या है ये है सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर इन मार्क्सिज्म। इट फोकसेस ऑन द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑथर एंड रीडर, द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। इट दस एग्जामिन्स द ऑथर्स कॉन्टेक्स्ट्स। सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल, इंक्लूडिंग मीडिया, पब्लिसिटी, फंडिंग, क्लास, कास्ट, रेस, gender, as well as readers, to see how culture produces certain kinds of texts and particular meanings of those texts. अब आते हैं हम मेन टर्म्स पे, कल्चर, आइडियोलॉजी और हेजेमनी। तो कल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि फिल्म्स या सोप ओपराज, सीरियल्स या कॉमिक बुक्स, they are created and they are consumed in particular contexts, as we have seen. Such products explain the world to us. Now, with their social reference, they help us make sense of the world. Even as the world we live in helps to us generate the meanings from a text. क्या कह रहे हैं? जो कल्चरल का सारी जो फिल्म्स हैं, सीरियल्स हैं, बुक्स हैं, कॉमिक बुक्स हैं, वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट हो रही हैं और कंज्यूम भी हो रही हैं। ये हमने देख लिया। ऐसे प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हमें दुनिया के बारे में समझाते हैं। सोशल रेफरेंस होते हैं उनके, सोशल रेफरेंस इज अ टर्म। उनके अंदर जो सोशल रेफरेंस हैं, दे हेल्प अस टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। सोशल रेफरेंस क्या होते हैं? कोई ऐसी चीज एक फिल्म में या किसी भी आर्ट फॉर्म में जो एक्चुअल किसी कंडीशन, किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी जगह की रियल कंडीशन को दर्शाता हो। सोशल रेफरेंस जैसे कि आएगा अभी एक एग्जाम्पल। वो नॉवल पढ़ी है आप लोगों ने, मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज? उसमें वो अपनी बीवी बेच देता है ना? अभी दैट वाइफ सेलिंग सीन is a social referent. How? Because it actually refers to plebeian communities में, it's a form of divorce. You sell your wife. It's a form of divorce. So it refers to the real condition of a particular community. ठीक है? This means works of art functions as codes for experiences and realities. तो codes है और हम क्या करते हैं? हम decode करते हैं work of art को depending on the contexts we occupy. हमने क्या देखा?
Marxist criticism suggests that all cultural forms seek to ensure that the dominant classes in a society remain dominant. In order to do so, we must convince the working classes and the oppressed not to rebel or revolt. अभी पावर स्ट्रगल पावर डायनामिक्स मेंटेन करना है तो हमें ऑप्रेस्ड क्लासेस को ये कन्विंस करना है कि आप रिबेल नहीं कर सकते. तो डोमिनेंट क्लासेस क्या करते हैं? दे अचीव दिस बाय सजेस्टिंग टू द वर्किंग क्लासेस कि जो प्रेजेंट सोशल कंडीशन है ना वो नेचुरल है और अल्टीमेटली तुम्हारा ही फायदा है इसमें. One needs only to think of the factory owners in Dickens's fiction and the way a character like Stephen Blackpool, जो hard times में है, is convinced of the naturalness of the industrial system. In order to achieve this convincing argument about the just and the natural order of things, dominant classes need to control the kinds of art and cultural products that circulate. So, books, music, film, कैसे करेंगे आप खुद सोचो ना. डोमिनेंट क्लासेस इन्हीं के थ्रू करती हैं, बुक्स के थ्रू, आर्ट के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू. कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएँगी जिसमें जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको प्रेज़ेंट किया होगा in a particular way, and through that they will convince the realities, the real living lower class people to believe कि ठीक है ये नेचुरल है यार, हमें रिबेल नहीं करना चाहिए, करेंगे तो जो है जो आ रहा है हाथ में वो भी चला जाएगा. ठीक है. To put it another way, cultural forms carry a message that the dominant classes want to pass on to the working classes. So, a message that suggests that quite all right, that the capitalist is a benevolent man and that the workers are not really oppressed. तो भलाई कर रहे हैं. In other words, cultural artifacts represent the world to us. What I have termed rather crudely message. In certain ways so that we obtain particular meanings from them. तो कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हमें दिखाते हैं वर्ल्ड इस तरह से कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर वे से ही समझते हैं, वो जो मीनिंग वो भेजना चाहते हैं हम तक पहुंच जाए. तो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म इज अटेंटिव टू द वेज इन विच आर्ट और अ कल्चरल आर्टिफैक्ट डज दिस रिप्रेजेंटेशन. इस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ना है मार्क्सिज्म में. सो डज अगर आपने कोई मार्क्सिस्ट रीडिंग करनी है तो यू टू डू दिस. ठीक है. Does a novel like Arundhati Roy's The God of Small Things accurately reveal the exploitative nature of gender relations and caste conflicts in small town India? बताओ. पढ़ी है आप लोगों ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? क्या वो सच में रिवील कर रही हैं जो जेंडर रिलेशंस हैं और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एक छोटे टाउन में? या एकता कपूर के सीरियल्स प्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ वुमेन एंड ऑफ रोल्स ऑफ वुमेन बस इस तरह से एज गुड? जो सुपर हीरो कॉमिक बुक्स हैं सजेस्ट with extraordinary powers are better human beings only because they serve the humans. So these questions focus on the nature of representation in works of art or culture. So these are questions that we need to ask if we are to understand the full implications of what we see, what we read and what we consume. तो ये जो implications हैं ये important हैं. सिर्फ एस्थेटिक नहीं देखना है किताब में. ठीक है. सोशल. The way a novel or film portrays women or the working classes can influence the audience's perception of them. Further, the novel or film can twist reality to represent as Hollywood films do in the case of terrorists. It is certain way in certain ways. ठीक है. तो आप कर रहे हो ना, ट्विस्ट भी कर रहे हो रियलिटी को. It convinces us to some degree that this is the way the world is. तो कल्चरल फॉर्म्स representation के modes हैं. The task of Marxist criticism is to see such representations reflect or refract existing economic conditions so that the dominant classes retain their power. मतलब सारी कहानी यही है कि dominant classes dominant रहें, वो अपनी पावर को maintain कर पाएं by hook और by crook, जैसे मर्जी. और Marxist reading इन्हीं representations को find करती है. ये आपने पढ़ना है. ठीक है. आई एम स्किपिंग दीज. कम हियर नाउ. तो कभी कभी क्या होता है, देयर इज अ ट्विस्ट. आप जो दिखा रहे हो, जो रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, ट्विस्ट है रियलिटी में. मतलब द रियल इकोनॉमिक कंडीशंस इन एनी सोसाइटी इज व्हाट मार्क्सिस्ट criticism calls ideology
एंड दिस इज द फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इन मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो ये आ गया हमारा आइडियोलॉजी। जैसे कि विक्टोरियन नॉवेल्स ने डिपिक्ट किया था वर्किंग क्लासेस को एज डर्टी, इमोरल, डिसऑनेस्ट, है ना? देयर आर कुछ वर्किंग क्लास ऑथर्स हु प्रोड्यूस्ड, बहुत कम है, कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया हो किसी ने। तो क्या रिप्रेजेंटेशंस ट्विस्टेड रियलिटी दिखा रहे हैं? ये देखना ज़रूरी है, और इसी को आइडियोलॉजी कहते हैं। किसको? जिस तरह के बिलीफ्स, आइडियाज़ फैला रहे हैं ये फ़िल्म्स, मूवीज़, और लोगों तक जा रही है वो विदाउट रियलाइज़िंग, दे आर consuming a particular belief that others want you to consume. So, Marx and Engels argue that the capitalist mode of production justified and naturalized itself through certain patterns of thought or ideas, what I have termed representation. With social structures such as education, culture, and religion, the oppressed classes believe that the ordinary is natural. अब वही बात आ गई ना कि आइडियोलॉजी तो फैला दी इन्होंने, उनको मेंटेन करने के लिए या उनको फैलाने के लिए उनको बहुत सारे व्हीकल्स चाहिए। तो बहुत सारे हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे फैमिली सबसे बड़ी है। फैमिली ही हमें बता देती है कि लड़का और लड़की में फ़र्क है, बचपन से। बॉयज़ को रेज़ अलग तरीके से किया जाता है, गर्ल्स को अलग तरीके से रेज़ किया जाता है। इट्स हाई टाइम दैट वी चेंज दैट। एंड रिलिजन रिलिजन बता देता है, लड़कियाँ तुम्हें ये अलाउड नहीं है, लड़कियों तुम्हें वो अलाउड नहीं है, लड़कियों तुम्हें ऐसे ड्रेसअप होना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। It goes on, right? Education system. All of these are vehicles to carry the ideology and maintain the power relations in the society. And do not recognize that they are oppressed. And लोगों को लगता है कि natural चल रहा है भाई सब कुछ, oppression है ही नहीं। This system of thought or representation पूरा एक स्कैंडल चल रहा है। हमें पता नहीं चलता, पूरा एक सर्किट है ये। तो ये सब नेचुरलाइज कर देते हैं इन इकोनॉमिक, ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, ऑपरेशन है, एंड इज टर्म्ड आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इज द राइटिंग्स, स्पीचेस, बिलीव्स, ओपिनियंस, cultural practices that assert the naturalness and necessity of economic practices. Ideology therefore is an instrument of power, इंस्ट्रूमेंट है पावर का, बिकॉज वो हेल्प कर रहा है डोमिनेंट क्लासेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, presenting it as natural. Ideology prevents the recognition of oppression by the oppressed. Thus, it is a blind, a veil that prevents the oppressed from proper understanding. Hence, Marx termed it false consciousness. अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, or rather confusion है, because I think it was Engels who termed it false consciousness. Let's clear it, okay? Yeah. So they say, Wikipedia says that it was Marx, although Marx never used the term false consciousness, he made references to workers having misguided or harmful ideas and suggested how those ideas got reinforced by powerful elites. अब ये कहते हैं, और कहते हैं that it was Engels. It was used once by his associate Engels to describe an incomplete insight into ideology, and then theorized by later Marxists in the 1920s. Engels first used the term in a letter, 1893 letter to the historian Franz Mehring. इस लेटर में he explained कि ideology is a process accomplished by the so-called thinker consciously, but with a false consciousness, because the true motives driving the thinker remains unknown to them. इसीलिए इसको false consciousness कहा इन्होंने, ideology. बाद में ल्यूकाक्स ने इसको पॉपुलराइज किया in this
history and class consciousness. So, false consciousness or ideology is a mode of misrecognizing the true nature of our material lives. कि हमें समझ में ही ना आए हमारे social roles when we consume a cultural artifact. So, it is a system of ideas, values, beliefs that we live by, through which we perceive the world. हम सबका एक perspective है, point of view है. वही हमारी ideology भी है, वही हमारी false consciousness भी है. So ideology is about power because it legitimizes the power of the dominant classes or sections of a society. From the examples above, we have seen how the capitalist class tries to naturalize conditions of exploitation. Ideology is what enables the capitalist class to naturalize these conditions because ideology provides a system of beliefs and ideas that the working classes absorb. John Thompson's definition: to study ideology is to study the ways in which meaning serves to sustain relations of domination. ठीक है? अब ये जो डोमिनेशन है और रीइंफोर्समेंट है, इसी को हम हेजेमनी भी कहते हैं. हेजेमनी इज द टर्म विच वाज पॉपुलराइज्ड बाय एंटोनियो ग्रामशी. इटालियन थिंकर थे ये. हेजेमनी क्या है? कि आप पे कोई थोप रहा है चीजें, डोमिनेट कर रहा है आपको, लेकिन आप कंसेंट दे रहे हो कि हाँ जी करो, बिकॉज इट इज नॉट डन बाय फोर्स. Hegemony is akin to ideology, but is more than that. अब remember, hegemony सर्व करने के लिए आइडियोलॉजी जरूरी है, क्योंकि हेजेमनी तभी हो पाएगा जब एक बिलीफ सिस्टम, एक ओपिनियन आपके ऊपर थोपा जा रहा है, तो आइडियोलॉजी आपके ऊपर कोई थोपी जा रही है. तो आइडियोलॉजी इज अ व्हीकल कैरिंग हेजेमनी. ओके, it includes ideology because, as we shall see, hegemony works most effectively when the dominated accept their domination. है ना? आपने अग्री कर लिया कि हाँ जी हम ऐसे ही ठीक हैं, आ जाओ करो. Hegemony refers to the processes, including ideology, through which the dominant classes maintain power through the consent of the people. हमने कल बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके लिए थे. So hegemony is the domination of particular sections of society by the powerful classes, not necessarily through the threats of violence or the law, but by winning their consent to be governed and dominated. So hegemony, like ideology, works less through coercion than through consent. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस हैं, they often seek privileged trading arrangements for their products. They can achieve this domination of third world markets by threatening the third world with economic sanctions or war, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड privileged है, हम लोग थर्ड वर्ल्ड हैं. However, the most effective tactic is often to persuade the third world nations कि ऐसा अरेंजमेंट हमारे लिए ठीक है, म्यूचुअली बेनिफिशियल है, हम तुम्हें ये देंगे, तुम हमें ये सब कुछ दो. इनकी दिल नहीं भरे, इतना सा है यूरोप. और अगर मैं मतलब डोमिनेशन की बात पहले की कर रही हूँ ना, इन्वेजन्स की बात कर रही हूँ, इतना सा है. और उतनी सी जगह से वो देवर सो क्यूरियस कि हर जगह जा जाके उन्होंने एक्सप्लोर किया, इंडिया को एक्सप्लोर किया, ब्राजील, कहीं 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 अमेरिका, सब जगह गए. और कुछ लोग कहते हैं कि जितना मैप पे दिखाई देता है ना यूरोप, एक्चुअल में उससे भी कम है. सम पीपल, देयर इज अ थ्योरी दैट गोज लाइक दैट कि मैप पे ज्यादा दिखाई देता है. एनीवे, ज्यादा दिखने के बाद भी सबसे छोटा ही है. लुक एट एशिया, राइट? लुक एट अफ्रीका, द ह्यूज, बिग. क्या नहीं कर सकते थे, सब कुछ था. बट जहां पे, क्योंकि वो लोग छोटी जगहें थी, वहां पे नेसेसिटी थी, एंड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो उन लोगों ने हाथ पैर मारे, हमें जरूरत नहीं थी. अगर इंडिया की बात करें, सब अच्छा बढ़िया चल रहा था, पैसे थे, सब था, स्पाइसेस थी, कपड़े थे, सब था. The third world is made to believe that free trade would benefit them too, when actually free trade turns out to expand first world trading territories and profits. The third world nations usually accept this mutual benefit as a given and approves of the agreement. This is hegemony, not through coercion but through consent. As can be seen, hegemony involves questions of ideology because it seeks to naturalize and legitimize
and unequal power relations by suggesting that is representing the trade agreement as a mutually beneficial one. Hegemony is achieved through the circulation of ideology. Clear, everyone? So Antonio Gramsci ने argue किया that revolutions are not always at the level of economic structure, but लेकिन at the level of ideologies. Okay? आइडियोलॉजी बहुत सारी जगह से फैला सकते हैं, पॉपुलर कल्चर, फोक सॉन्ग्स, लेजेंड्स। आप सुनाई चलो कोई भी कहानी और फैलाए चलो आइडियोलॉजी को। तो आइडियोलॉजी मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ एज अ मटेरियल फोर्स। It is important for hegemony that ideology is made available to the working classes, not as a visible instrument of power and hegemony, but more subtly, commonplace, invisible, एकदम ऐसे पीछे से दिमाग में घुसा देनी, right? So ideology is sustained, it is reinforced, it is reproduced through cultural forms. अभी हम बात करते हैं ISAs की, आई थिंक आने वाला होगा। जैसे हमने अभी देखा अमेरिकन सेवियर वाली फिल्म्स, है ना? ये भी आइडियोलॉजी है बिकॉज़ इट मास्क्स द एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशंस अमेरिका हैज़ विद अदर्स, थर्ड वर्ल्ड नेशंस, कि कैसे वो एक्सप्लॉइट करते हैं सबको। द वॉर्स इट हैज़ इटसेल्फ स्टार्टेड, कि आप क्या सेव करने आ रहे हो? तुम खुद ही क्राइसिस क्रिएट कर रहे हो, है ना? एंड द इकोनॉमिक टेररिज्म इट प्रोपगेट्स थ्रू फोर्स्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। पता भी नहीं हमें कि क्या-क्या पीछे से ये लोग करते हैं। कभी पता चलता है कि उनको आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं, उनके साथ कुछ कर रहे हैं, ये वो। उनके घर में बच्चों के पास क्यों हैं गन्स? क्यों ये लोग ऐसा होता है कि वहाँ अमेरिका में हम आए दिन सुनते हैं कि स्कूल्स में फायरिंग हो रही है, स्कूल में बच्चे गन्स लेके आए हुए हैं। However, we need to also understand layer of complexity to the theme of ideology. A filmmaker or an artist need not be deliberately setting out to portray the Muslim as a terrorist or the American as a savior. अभी आइडियोलॉजी ऐसा है, और आप देखो अभी अगर हम देखें कुछ टाइम से हमारी कंट्री में, तो आप खुद अब, क्योंकि आपने समझ लिया ना कि आइडियोलॉजी कैसे फैलाई जाती है, अब खुद सोचो कि क्या-क्या आइडियोलॉजीज़ फैलाई जा रही है हमारे नेशंस में मीडिया के थ्रू। हर बार मतलब उनके पास और कोई काम ही नहीं है। They only have to portray one community as bad, and वही सबके घरों में। If you have seen or you've realized, you will see that इतना हेटरेट जो रिलीजियस कम्युनिटीज में है अब, वो इतना पहले नहीं था। हम लोग छोटे थे, हम सुनते भी नहीं थे ये सब। अभी तो घर-घर में ऐसा लगता है जैसे वो उन्हीं को आके मारा है, एक दूसरे के रिलीजन वालों ने। इतना हेट्रेड क्रिएट कर दिया है मीडिया ने आइडियोलॉजी फैला के। So it works at an unconscious level. It is creeping in. Consumer culture proposes that consumers are free to choose their products, है ना? However, ads देखो, दुखती रस उस पे रगों पे हाथ रख देती हैं। किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, ठीक ही नहीं हो रही, ठीक ही नहीं हो रही, बस उसी पे वो बताएंगे कि आप तो यही प्रोडक्ट लो, यही आपके लिए अच्छा है। वो प्रोडक्ट लेके और भर जाता है चेहरा। इससे आप गोरे हो जाओगे, इससे आप एक्ने फ्री हो जाओगे, इससे आप ऑयल फ्री हो जाओगे, व्हाट नॉट। So in this we are not really free, you know. For example, using a doctor to sell a toothpaste, ये भी तो आइडियोलॉजी है। अभी सेंसोडाइन की एड्स आती हैं, हमें लगता है सही में डॉक्टर बैठ के बता रहा है। It appeals to us because we traditionally trust doctors, right? Doctors are commonly associated with commerce and hence it seems to be medical professional advice on screen. और उसमें कोई ऐसा लाइटनिंग और जैसी एड्स में होती है वैसा भी नहीं होता, एकदम शांति से डॉक्टर बैठ के बता रही है। So we believe that when a doctor recommends a toothpaste, she or he does so based on an expert opinion, not marketing or profit. ठीक है? Since that sale of a toothpaste cashes in on several areas of belief, trust in doctors is what works there. अभी टेरी ईगल्टन का नाम लिख लो, अच्छे से पढ़ना है। ये हमें 6 स्ट्रैटेजीज बताते हैं कि किस तरह से आइडियोलॉजी वर्क करती है, ठीक है? ये कहते हैं कि सबसे पहले आप एक पर्टिकुलर बिलीफ या वैल्यू को प्रमोट करो अच्छे से। उसको नेचुरलाइज कर दो उस बिलीफ को।
यार ये तो है ही, अच्छा ही है ये तो आपके लिए। फिर यूनिवर्सलाइज़ कर दो, ठीक है? उसके बाद जो भी अपोज़िंग आइडियाज़ हैं, उनको डीवैल्यू कर दो, रिजेक्ट कर दो अल्टरनेटिव या राइवल फॉर्म्स ऑफ थॉट को, ऑब्सक्योर कर दो सोशल रियलिटी को, ऑब्सक्योरिंग सोशल रियलिटी, पकड़ लिए सारी सोशल रियलिटी। ये है तरीका जिससे आइडियोलॉजी वर्क करती है, अकॉर्डिंग टू टेरी ईगल्टन। So for hegemony to be effective, it has to become invisible. And this is where ideology comes in. The civil society, with its structure of court, the bureaucracy, religious and educational systems, they spread ideology through the law, textbooks, religious rituals, etc., etc. Just go through it. It's all the same that we just read. Hmm. Okay. Yet, we also know that literacy and cultural texts, I mentioned Syriana, na, जो lesser known थी, often go against the prevalent ideology. अब ऐसा नहीं है कि सारी फ़िल्म्स आइडियोलॉजी ही फैला रही हैं। अब आइडियोलॉजी ये फैलाई हुई थी पहले के लोगों ने कि घर में पति अगर अपने पत्नी को एक थप्पड़ लगा भी दे तो चल जाता है बिकॉज़ वो थक के आया है बेचारा और पैसे कमा रहा है ये वो। ही इज़ द मैन, अल्फा मेल। लेकिन मूवीज़ लाइक थप्पड़ प्रेज़ेंट अ काउंटर आर्गुमेंट दैट इट इज़ नॉट ओके, राइट? सो ज़रूरी नहीं है कि सारी फ़िल्म्स आइडियोलॉजी ही फैलाएँ, जो प्रेवलेंट आइडियोलॉजी है, वो कोई डिफरेंट आइडियोलॉजी भी फैला सकते हैं, जैसे कि मुल्क राज आनंद की अनटचेबल, फॉर ऑल इट्स फ्लॉज़ चैलेंज्ड द प्रेवलेंट थिंकिंग अबाउट कास्ट 1930s इंडिया में, आइडियोलॉजिकल थी, बट one whose ideology was in sharp opposition to the prevalent one, correct? Thus, it cannot be accepted that all art is ideological and geared to the interests of the dominant classes. इसके लिए अल्थ्यूज़र ने बात की, ठीक है? इसी ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट व्यू को रेमेडी करने के लिए कि ऑल आर्ट इज आइडियोलॉजिकल, फ्रेंच थिंकर एल्थ्यूजर ने एक नया स्कीम हमें दिया। एल्थ्यूजर ने सजेस्ट किया कि आर्ट हैज अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप विद आइडियोलॉजी। इफ आइडियोलॉजी इज इमेजिनरी, मतलब अगर बिलीफ्स, वैल्यूज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को प्रमोट कर रहे हो एंड आर्ट भी इमेजिनरी थिंग्स के बारे में है, देन देर इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू। तो आर्ग्यू किया इन्होंने एल्थ्यूजर ने दैट art does not exist within ideology, but it often distances itself from it through works like Untouchable. So more या फिर पिंक, पिंक थी ना वो मूवी, कौन सी थी? पिंक, आई थिंक। More importantly, Althusser argued that ideology is circulated through particular structures in society. और इनको इन्होंने कहा, ये मैंने आपको पूरा ऐसे भेज दिया है Althusser का, so please go through it nicely. Ideological state apparatuses. So Althusser proposed कि state imposes कुछ vehicles हैं जिसके थ्रू आइडियोलॉजी फैलाई जाती है, पुलिस, लॉ, आर्मी, ये सारी चीजें। Acceptance of cultural norms and habits because of the fear of state reprisals is the coercive mechanism of ideology. Thus, when the Taliban insisted on Islamic dress for women, and when the US government put in place the Patriot Act post 9/11, the ideology of Islamic culture and patriotism were imposed. How? Through the threat of legal action and violence. बताओ, ड्रेस कोड women के लिए। However, as states have found, it is more effective to impose ideology by smuggling it in and getting the population to accept it. फोर्स की तो बात ही नहीं है, क्योंकि है ना, बात है कि इम्पोज करना और पॉपुलेशन उसको एक्सेप्ट भी करे। दिस इज द consent mode of ideology dissemination. तो ISAs, बताओ कौन कौन से और हैं ISAs? एजुकेशन है, फैमिली है, रिलीजन है, ये सब हैं ISAs, ठीक है? फिल्म्स,
आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर नाउ। प्लीज रीड दिस, इट्स वेरी सिंपल। जो समझा दिया है बस उसी को लिखा है। रीडिंग इज इंपॉर्टेंट हियर एज आई टोल्ड यू। मेन नाम आ गए, टेरी ईगल्टन, एल्थ्यूजर, आज अच्छे से करने हैं। मार्क्स और एंगल्स पहले ही आ गए थे, और एंटोनियो ग्रामशी। ठीक है, सो कंप्लीट दिस। इंटरपेलेशन मैं आपको अभी बता देती हूँ, उसको आप पढ़ लेना। इंटरपेलेशन क्या होता है? जब आप आइडियोलॉजी में आ गए, ठीक है, आपने कंसेंट कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया उसको, और आपको पता भी नहीं है कि आप उस आइडियोलॉजी के थ्रू आप ऑप्रेस्ड हो। पहली बात तो यही नहीं पता कि आप आइडियोलॉजी का एक शिकार बन चुके हो। यू आर अ सब्जेक्ट, है ना, इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, इन अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। तो जब ये स्टेट में आप आ जाते हो, उस तब आप कहलाते हो इंटरपलेटेड इंडिविजुअल। तो इंटरपलेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंसेंटिंग टू आइडियोलॉजी, एक्सेप्टिंग इट एंड नॉट बीइंग अवेयर ऑफ इट, कि आपने ये कर दिया है, कि आप सब्जेक्ट बन चुके हो। और ये बहुत बार होता है। इट मेक्स द सब्जेक्ट बिलीव दैट शी और ही इज एन इंडिपेंडेंट बीइंग। आप दूसरे के बारे में बता सकते हो, थिंक अबाउट योर मदर, योर फादर, उनके पर्टिकुलर किसी ना किसी आइडियोलॉजी का शिकार है वो। लेकिन अगर आप उनको कहो कि यू आर पेट्रियार्कल, तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए वो नेचुरल है। जैसे एक बार मेरे रिश्तेदार एक घर आए थे, और वो कह रहे थे कि देखो, आजकल की मदर्स को बस डायपर पहनाए हुए हैं बच्चों को, और उसके बाद ये रैश क्रीम लगा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। ही वाज वेरी ओल्ड, सो आई कुडंट रियली से एनीथिंग, बट आई थॉट टू माई सेल्फ, व्हाट अ पेट्रियार्कल मैन। क्योंकि फादर का कोई रिलेशन ही नहीं है उसमें, फादर को कुछ कर ही नहीं रहा है, पापा थोड़ी करेंगे। एंड ही सेड अ फ्यू लाइन्स मोर। ही वाज एन इंटरपोलेटेड इंडिविजुअल, ही वाज, उसको क्योंकि उनको नेचुरलाइज लग रहा था वो सब। तो इंटरपोलेशन दो स्टेजेस में होता है। आइडियोलॉजी प्रीसीड्स द इंडिविजुअल एंड एन इंडिविजुअल इज इंसर्टेड इनटू द आइडियोलॉजिकल स्कीम। There is a predetermined set of roles out of which the individual automatically chooses a few, all the while assuming that he or she has freely chosen them. कि मैं तो free हूँ, मैं तो है ही नहीं कोई। So woman is interpolated as a girl child, daughter, mother, wife, but made to believe that these are her natural roles. Exactly. जैसे कि उस बच्चे को आप गीला ही रखो, फिर गीला करते रहेगा, वो करता रहेगा, और उससे रैशेज़ नहीं होंगे, उससे अनहाइजीनिक चीज़ें नहीं फैलेंगी, उससे रैशेज़ नहीं होंगे। So she is carefully nurtured into these roles, and then वो अपना रोल के हिसाब से मदर, वाइफ बन जाती है, डॉटर, by being made to adopt certain postures, perform certain kinds of function, and behave in certain ways. So her subject position as women is created in advance of her, and she is simply inserted into the ideology of patriarchy, even though she never realizes this. Okay, that's ideology. So complete करो इसको, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू, सी यू।